Hello students, let's start with the chemical reactions of amines. The first and the most important chemical reaction of amines is basic nature of amines. Now why amines are basic in nature? Since amines are derivative of ammonia, and if you remember, in case of ammonia it has a lone pair on nitrogen, and when you add ammonia to water, this lone pair is donated to the H plus ions and result into the formation of NH4 plus and OH minus, ammonium hydroxide, a basic solution which turns red litmus paper blue in nature. Now similarly, since amines are the derivative of ammonia, they are capable of donating this lone pair of electron to the electron deficient atom, and they act as a Lewis base. Okay, now let us see why they are basic in nature. So the first experimental proof can be done in lab, that when amines are added to mineral acids like HCl, H2SO4, the lone pair of the nitrogen donate its lone pair to the H plus ions of the acids and result into the formation of salt like ethyl ammonium chloride, ethyl ammonium sulfate. The salt which is formed in the reaction itself is a proof that amines are base in nature and they can react with an acid, and plus they can turn red litmus paper blue in color. And when you add a strong base like NaOH to it, the amines are regenerated. You will again get back your original compounds. So this is one of the proof that amines are basic in nature. Now amines are organic base, and organic base are weak in nature. Explanation is given when you add amines to water, and when you add amines to water, it try to donate its lone pair to the H plus ions to form NH3 plus, and OH minus is set free. Okay, now this equilibrium, there is an equilibrium between the ions which are formed and the amines and water. Now if you see this reaction properly, amines are donating lone pair of electrons, so they are acting as a base in the forward reaction, and OH minus is capable of accepting H plus and giving back H2O. So OH minus is also a base, but this equilibrium shift more towards left hand side. अगर ये left hand side की तरफ ज़्यादा shift हो रहा है, मतलब there is more concentration of amines and there is less concentration of OH minus ions. So if there is less concentration of OH minus ions, it clearly indicate that OH minus ions is reacting at a more faster rate in a backward direction. Therefore OH minus ions are stronger base than amine itself. So this equilibrium clearly indicates that amines are weak base in nature, since the equilibrium is more towards the left hand side. Okay, and when you apply the law of mass action on such equilibrium, you get a value of Kb. Like in acid you get Ka, where Kb is the product of OH minus into the salt upon amines. Now if Kb value is more, salt concentration will be more, RNH3 plus, and if this concentration is more, then basic nature will be more. And if you remember that small p of anything is minus log of that thing, matlab small p of Kb is minus log of Kb. So if Kb value is more, pKb value has to be less if the basic strength is more. Okay, so remember this thing, that amines are weak in nature because पानी में डालने के बाद वो equilibrium ज़्यादा right hand side पे होता, तो there will be more OH minus and less RNH2. तो मतलब RNH2 ज़्यादा react हुआ है, but the equilibrium is more towards the left hand side, मतलब OH minus ज़्यादा react कर रहा है as compared to RNH2. तो OH minus is a base in the backward direction, RNH2 is a base in the forward direction. So the backward direction base is reacting more faster as compared to the forward direction. Therefore OH minus becomes more stronger base as compared to RNH2. Therefore alkyl amines are weak base in nature, and their basic nature depends upon, mathematically depends upon the Kb and pKb value. If pKb value is less or Kb value is more, basic strength will be more. For example, I have arranged some amines in the increasing basic order in aqueous media. Okay, aqueous media. अब देखो मैं यहाँ पर ऑर्डर कैसा बना रहा हूँ. डाइथाइलामाइन, it has a pKb of 2.95, the lowest. सबसे कम pKb होगा तो सबसे ज़्यादा basic strength. This is a secondary amine. It is more than the tertiary amine, diethylamine, which is more than dimethylamine. Again a secondary, then a primary. So can you see this order? This order is abnormal order in aqueous media.
उसका एक रीज़न है। वो रीज़न समझने से पहले लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन द गैस फेज। पहले वो समझेंगे, देन विल कम बैक टू दिस अगेन इन गैस फेज। नाउ अमाइंस are base because they are capable of donating lone pair of electrons. Okay, now if you talk about tertiary amine, secondary amine and primary amine, so in case of tertiary amine, the nitrogen atom is attached to 3 alkyl groups. Alkyl groups are plus I group. They release electron towards the nitrogen atom, thereby increasing the electron density. मतलब यहाँ का electron density बहुत ज़्यादा होगा because of greater plus I effect as compared to secondary amine, क्योंकि यहाँ पर 2 ही टाइम प्लस आई है, एज कम्पेयर टू प्राइमरी क्योंकि यहाँ पर 1 ही टाइम प्लस आई है। तो सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टर्शियरी अमाइन के नाइट्रोजन पे रहेगा, एंड दे आर केपेबल ऑफ डोनेटिंग दिस इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली इन गैसियस मीडिया, क्योंकि गैस में मॉलिक्यूल्स बहुत दूर रहते तो स्टीयरिक फैक्टर भी नहीं होता है, ओवर क्राउडिंग का फैक्टर भी नहीं आता, तो दे कैन डोनेट दिस इलेक्ट्रॉन मोर इजीली, प्लस दे आर हाईली intense. The electronic cloud is highly intense as compared to primary and secondary. Therefore, tertiary amine becomes more basic as compared to secondary and primary. तो गैस फेज में एक ही रूल कि if plus I effect increases, electron density on nitrogen increases, electron donating capacity obviously increases, basic nature increases. So tertiary will be greater than secondary, secondary will be greater than primary. क्योंकि प्राइमरी में प्लस आई इफेक्ट बहुत कम है, एक ही अल्काइल है, तो इसके नाइट्रोजन पे जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड रहेगा वो कम रहेगा, लेस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एज कम्पेयर टू वॉट अ टर्शियरी अमाइन। अच्छा, अमोनिया में देर इज नो प्लस आई, तो ऑब्वियसली इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इंटेंसिटी और कम रहेगा एज कम्पेयर टू प्राइमरी, सेकेंड एंड टर्शियरी, तो वो और कम बेस होगा। एंड इफ यू टॉक अबाउट एनालीन, एरोमेटिक अमाइन, योर एनालीन एरोमेटिक अमाइन, this NH2 is a plus R group. It try to donates electron to the ring. See, it is donating electron to the ring, plus R resonance, जिसके वजह से there will be a positive charge created on nitrogen. मतलब the electron density on the aromatic nitrogen is the least, तो इसका donating capacity सबसे कम रहेगा। इसके लिए गैस फेस का ऑर्डर रहेगा टर्शियरी, highest amount of plus I effect, highest electron density as compared to secondary, as compared to primary, then ammonia, and then aromatic, because aromatic में these lone pairs are not easily available for the donation to the other electron deficient atom. Why? Because they are involved in the resonance process, the plus R process. Okay, so electron density on nitrogen will decrease, so they will be having the least basic strength in gas phase. तो gas phase का order हो गया 3 degree, greater than 2 degree, greater than 1 degree, greater than ammonia, greater than aromatic. But when you talk about donation of electron pair, that is the basic nature in aqueous phase, तो aqueous phase में सबसे पहले amines को पानी में soluble होना पड़ेगा। All these amines, primary, secondary, tertiary, they have to get solubilized in water. तीनों amines को पानी में soluble होना पड़ेगा, and solubility depends upon hydrogen bonding. तो सबसे अच्छा सॉल्वेशन कौन दिखाएगा? प्राइमरी अमाइन। वाई? बिकॉज प्राइमरी अमाइन कैन फॉर्म 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। इफ़ यू कैन रिकलेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन, मैंने एक्सप्लेन किया था कि इफ़ यू टेक अ प्राइमरी अमाइन RNH2 डेल्टा माइनस एंड डेल्टा प्लस, दे आर केपेबल ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। सी, डेल्टा माइनस O से अटैच हो रहा है, ये किससे अटैच होगा? डेल्टा प्लस H से। 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब यहाँ का हाइड्रेशन प्राइमरी अमाइन में देखो, अब प्राइमरी अमाइन इट इज कंबाइनिंग विद 3 मोल्स ऑफ वाटर, तो हाइड्रेशन इज हाईएस्ट। बट इफ यू टॉक अबाउट सेकेंडरी अमाइन, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, इट इज अटैच टू 2 मोल्स ऑफ वाटर। सो अगेन यहाँ पर 2 टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, यहाँ पर 3 है, 3 मोल्स है, सो हाइड्रेशन विल बी मोर, मतलब सबसे ज़्यादा पानी में कौन सॉल्युबल होगा? प्राइमरी, देन सेकेंडरी, और टर्शियरी सबसे लीस्ट रहेगा R3N डेल्टा माइनस। इसका जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है वो भी बहुत लीस्ट बनेगा। वाई? बिकॉज देर इज अ ग्रेटर अल्काइल ग्रुप्स आर हाइड्रोफोबिक। पहले तो ये बात हो गई कि पानी में जल्दी डिजॉल्व नहीं होते, दे डोंट लाइक वाटर, ओके, दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। जितना ऑर्गेनिक कंपाउंड इंक्रीज होता है, जितना R इंक्रीज होता है, उनका सॉलिबिलिटी पानी में कम होता है, प्लस दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू अ वेरी लेस एक्सटेंट, बिकॉज ये जो वाटर उसको अप्रोच करेगा तो दे विल बी ओवर क्राउडिंग टू फॉर्म अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद नाइट्रोजन। तो सबसे सॉल्वेशन की बात करेंगे, मतलब पानी में डिजॉल्व होने की बात करेंगे, तो प्राइमरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी, ग्रेटर देन टर्शियरी, और जब पानी में डिजॉल्व होगा तो ही तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। दूसरा,
प्लस आई इफेक्ट, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे होगी? ऑब्वियसली टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, बिकॉज ऑफ द ग्रेटर प्लस आई इफेक्ट। थर्ड फैक्टर जो पानी में गवर्न करता है, द थर्ड फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्टीयरिक फैक्टर, ओवर क्राउडिंग। मतलब सपोज इट इज़ अ प्राइमरी अमाइन RnH2, इसको अपना लोन पेयर डोनेट करना है वाटर में जाने के बाद, सपोज H+ को, ओके, या कोई भी E+ को, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम को, तो इजीली डोनेट कर सकता है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट सेकेंडरी, तो वहाँ पर E+ को डोनेशन थोड़ा कम होगा, मतलब इतना ज़्यादा इजी नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ द ओवर crowding of the alkyl groups. Now if you talk about tertiary, this tertiary has 3 alkyls attached to it. There will be a lot of overcrowding. अच्छा, पानी में सिर्फ एक मॉलिक्यूल नहीं होते ना, उसके साइड में दूसरे मॉलिक्यूल भी हो गए टर्शरी के, RN, सो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी H+ को बहुत कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस ओवर क्राउडिंग ऑफ द मॉलिक्यूल। बहुत ज़्यादा सराउंड है ये, तो ये इजीली डोनेट नहीं कर पाएगा। लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे हाईएस्ट है, फिर भी ये इजीली डोनेट नहीं कर पा रहा। इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम है लेकिन इजीली डोनेट कर पा रहा है बिकॉज ऑफ लीस्ट स्टीयरिक फैक्टर। सो इन केस ऑफ एक्वस सोल्यूशन, द बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड अपॉन सॉल्वेशन इन वाटर, प्लस आई इफेक्ट, एंड बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टीयरिक फैक्टर। जितना स्टीयरिक फैक्टर होगा उतना हिंड्रेंस होगा, ओवर क्राउडिंग होगा इलेक्ट्रॉन डोनेशन के लिए। तो सॉल्वेशन सबसे ज़्यादा किसका होता है? प्राइमरी का। प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा टर्शरी, स्टीयरिक इफेक्ट सबसे ज़्यादा टर्शरी। तो अब डिसाइड करना है इसके अंदर कि विच इज सपोज टू बी मोर स्ट्रॉन्ग, तो हम लोग सेकेंडरी को चूज करेंगे बिकॉज सेकेंडरी के अंदर सॉल्वेशन टर्शरी से ज़्यादा है बट प्राइमरी से कम। प्लस आई इफेक्ट प्राइमरी से ज़्यादा है बट टर्शरी से कम। स्टीयरिक इफेक्ट अगेन इंटरमीडिएट है। दैट इज वाई इट इज डिसाइडेड के इन जनरल द बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस सोल्यूशन, याद रखना, इन एक्वस सोल्यूशन इज 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री अमोनिया एरोमेटिक। अमोनिया एरोमेटिक सबसे लीस्ट ही रहेगा क्योंकि उसमें एक में अमोनिया में प्लस आई नहीं है, और एरोमेटिक के अंदर आपको पता होगा लोन पेयर इज डोनेटेड टू दी रिंग। तो 213 अमोनिया एरोमेटिक फॉर दी बेसिक स्ट्रेंथ। लेकिन अब मिथाइल ग्रुप लोगे तो इट फॉलोज 213 प्रॉपर, लेकिन इथाइल ग्रुप लोगे तो इट फॉलोज 231। ये दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना। इफ यू टेक मिथाइल ग्रुप एज R, then secondary dimethylamine CH3 twice NH will be more than प्राइमरी। मतलब अगर मुझे मिथाइल ग्रुप के लिए ऑर्डर बनाना है, सो 213, मतलब फॉर मिथाइल ग्रुप द ऑर्डर विल बी CH3 twice NH, secondary is greater than CH3 NH2, primary which is greater than CH3 thrice N, tertiary which is greater than ammonia greater than aromatic। ये तो लीस्ट ही रहता है। लेकिन अगर मुझे बनाना है इथाइल के लिए तो अगेन इसमें भी सेकेंडरी पहले आता है, C2H5 twice NH इज ग्रेटर देन, अब टर्शरी आ जाता है बिकॉज ऑफ ग्रेटर प्लस आई इफेक्ट, टर्शरी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, देन C2H5NH2 प्राइमरी, और फिर लास्ट में वही अमोनिया एंड एरोमेटिक इन नेचर। ओके, सो गैस फेज में सिंपल है। गैस फेज के अंदर क्या ऑर्डर रहेगा? सिर्फ प्लस आई इफेक्ट रहता है गैस फेज में, तो ऑर्डर क्या रहेगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ओके, अमोनिया एरोमेटिक नॉर्मल ऑर्डर, जितना ज़्यादा प्लस आई उतना ज़्यादा बेसिक नेचर। बट अगर वही आप सोल्यूशन फेज में आ जाओगे तो सोल्यूशन फेज में 3 फैक्टर होते हैं, सॉल्वेशन, प्लस आई, स्टीयरिक, जिसकी वजह से ऑर्डर हो जाता है 213 अमोनिया एरोमेटिक। मिथाइल लिया तो परफेक्ट 213 अमोनिया एरोमेटिक है, इथाइल लिया तो 231 अमोनिया एरोमेटिक, लेकिन सेकेंडरी के हमेशा हाईएस्ट रहेगा। सो इसके लिए जब मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिए थे, सी प्रॉपरली ऑल दोज एग्जाम्पल्स। देखो इथाइल वाला सेक्शन देखो, इथाइल, इथाइल, ये सेकेंडरी इथाइल है, ये टर्शरी इथाइल है, ये प्राइमरी इथाइल है। तो 231, 231। ओके, मिथाइल वाला ग्रुप लो तो सेकेंडरी मिथाइल, सेकेंडरी मिथाइल। ओके, देन यू हैव मिथाइल अमाइन, उसको प्राइमरी में गिनते बट मिथाइल अमाइन समझ लो, प्राइमरी रैप हो गया ये सेकेंडरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन, और फिर उसके बाद में CH3 थ्राइसन, टर्शरी अमाइन। अच्छा, ये सारे एलिफैटिक्स है, देखो ये सारे एलिफैटिक, यहाँ तक के एलिफैटिक। इसके बाद में देखो एरोमेटिक सबसे लो होते जा रहा है, ये भी एलिफैटिक ही है, सॉरी CH2 से अटैच है। फिर अमोनिया आएगा, फिर अमोनिया के बाद देखो सारे एरोमेटिक आ रहे हैं। वाई एरोमेटिक इज लीस्ट? बिकॉज देयर लोन पेयर इज डोनेटेड टू द रिंग।
तो सिंपल, गैस फेज हैज अ ऑर्डर ऑफ 3-2-1 अमोनिया एरोमेटिक, सोल्यूशन फेज हैज अ ऑर्डर ऑफ 2-1-3 अमोनिया एरोमेटिक, मिथाइल में 2-1-3, इथाइल में 2-3-1. Okay, now we know that as plus I increases, electron density increases, basic nature increases. So we know one rule of basic and acidic strength, that as minus I increases, basic strength decreases, plus R increases, and electron releasing group increases, basic strength increases. Okay, ये सब groups आप जानते हैं, electron withdrawing and electron releasing. But एक चीज याद रखना, in case of aromatic amines, there is a effect called as ortho effect. What is that ortho effect? In case of aromatic amine, ortho पे electron withdrawing group हो, यानी -R, or it can be electron releasing group +R. Due to ortho effect, which is a combination of steric factor and electronic effect, the ortho substituted anilines, whether it can be electron withdrawing group or electron releasing group, their basic nature is least. अब जैसे मैं ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सी प्रॉपरली. मिथाइल ग्रुप इज अ प्लस आई ग्रुप. तो मिथाइल एनालीन, पैरा मिथाइल एनालीन, पैरा इज मोर बेसिक देन मेटा. मेटा इज मोर बेसिक देन एनालीन बिकॉज एनालीन में कोई प्लस आई ग्रुप है ही नहीं. इज मोर देन ऑर्थो, हालांकि ऑर्थो को पहले होना चाहिए था. तो ऑर्थो होना चाहिए था, फिर पैरा होना चाहिए था, फिर मेटा. क्यों ऑर्थो होना चाहिए था? बिकॉज प्लस आई इज वेरी क्लोज टू NH2. जितना क्लोज रहता है उतना ज़्यादा इफेक्ट होता है. बट बिकॉज ऑफ स्टीयरिक फैक्टर, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, ऑर्थो वीक हो जाएगा और ये आपका प्लस आई ग्रुप है. क्लियर है? अच्छा, पैरा मेटा से ज़्यादा क्यों है? बिकॉज NH2 इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो उसका रिलेशन ऑर्थो और पैरा से ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वॉट मेटा. इसके लिए पैरा विल बी मोर देन मेटा बिकॉज पैरा का प्लस आई इफेक्ट फेवर करेगा. अब सपोज मैंने नाइट्रो लिया, नाइट्रो इज माइनस आई ग्रुप, -R ग्रुप, तो एनालीन सबसे पहला हो जाएगा बिकॉज देर इज नो -R. ऑब्वियसली बिकॉज -R इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल ऑल डिक्रीजेस. क्लियर है? अच्छा, नाउ मेटा और पैरा और ऑर्थो सबसे लीस्ट होगा बिकॉज ऑफ ऑर्थो इफेक्ट. इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, ऑर्थो पे होगा तो एनालीन बेसिक नेचर विल बी लीस्ट. नाउ वाई मेटा इज ग्रेटर देन पैरा? बिकॉज NH2 का इंटरक्शन मेटा से ज़्यादा नहीं है. इसके लिए मेटा का -R इफेक्ट बहुत कम होता है एज कंपेयर टू -R इफेक्ट ऑफ पैरा पोजीशन. और -R इंक्रीज होने से बेसिक नेचर कम होता है. सो मेटा का -R इफेक्ट विल बी लीस्ट एज कंपेयर टू व्हाट? पैरा. देयरफॉर मेटा बिकम्स मोर बेसिक एज कंपेयर टू पैरा. अगर ये दोनों का आप कंपेयर करोगे ना, सी प्रॉपरली, इफ आई टेक अ NH2 ग्रुप और मैंने पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप डाल दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन O पुल करेगा तो ये रिंग का इलेक्ट्रॉन ले लेगा. ओके, जिसकी वजह से देखो आपको एक स्ट्रक्चर ऐसा मिलेगा, सी N प्लस O माइनस प्लस चार्ज ईयर NH2 विद लोन पेयर. फिर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, रेजोनेंस, सी बॉन्ड शिफ्ट हो गया इधर, यहाँ पर है N O माइनस प्लस. अब प्लस चार्ज देखो इस पे आ रहा है, ये पोजीशन पे NH2, जो इस लोन पेयर को खींचेगा. तो बेसिक नेचर कम करा. लेकिन अगर यही NO2 आपने मेटा पोजीशन पे लिया, देखो मेटा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सी दिस इज पुलिंग इलेक्ट्रॉन, तो रिंग ये इलेक्ट्रॉन ले लिया मेटा पोजीशन का, तो आपको स्ट्रक्चर ऐसा मिलेगा लाइक दिस. NH2 लोन पेयर, यहाँ आ गया प्लस चार्ज क्योंकि डबल बॉन्ड अंदर शिफ्ट हो गया, बॉन्ड इधर ही था. N O माइनस डबल बॉन्ड आएगा ना. उसके बाद में सी प्रॉपरली ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा. तो जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा आपको एक स्ट्रक्चर ऐसा मिलेगा. इसका यहाँ बना देता हूँ मैं स्ट्रक्चर. सी गेट अ स्ट्रक्चर लाइक दिस. O माइनस प्लस इधर आ गया NH2. अब देखो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो आपको एक स्ट्रक्चर ऐसा मिलेगा. NH2 प्लस. तो प्लस बिकॉज ऑफ मेटा पोजीशन पॉजिटिव चार्ज अल्फा कार्बन पे आ ही नहीं रहा है. सी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ ही नहीं रहा है अल्फा कार्बन पे. तो देयर इज नो पॉजिटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन पुलिंग इनसाइड द रिंग बिकम्स डिफिकल्ट.
तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट हो सकता है किसी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम को। दैट इज वाई मेटा पे नाइट्रो का इफेक्ट बहुत कम होता है, इसके लिए मेटा नाइट्रो एनिलीन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट हो सकता है, देयरफॉर इट बिकम्स मोर बेसिक एज कंपेयर टू पैरा, एंड पैरा इज मोर देन ऑर्थो। ऑर्थो को ज़्यादा होना ही चाहिए, ऑर्थो को और कम हो गया, क्यों? बिकॉज ऑफ विच इफेक्ट? ऑर्थो इफेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल आई हैव टेकन डाईमिथाइल एनिलीन CH3। तो ये कौन से ग्रुप हो गए? प्लस आई ग्रुप, 2+ आई ग्रुप। मिथाइल एनिलीन, डाईमिथाइल NN dimethyl aniline is more basic than methyl aniline is more than aniline because there are 2+ I and there is 1+ I group। तो प्लस आई इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और नाइट्रोजन विल इंक्रीज ना। ये देखो मैंने क्या किया, रिंग के साथ एनिलीन के साथ में रिंग अटैच कर दिया। सो इफ देर आर रिंग अटैच देन N विल बी मोर डीलोकलाइज इन दी अदर रिंग। वो ये रिंग में भी जाएगा, ये रिंग में भी जाएगा, इसका सिर्फ एक ही रिंग में जाएगा। तो डोनेशन यहाँ से बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, और इसका तो सबसे लीस्ट होगा बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन पेयर 3 रिंग में सर्कुलेट होगा। सो डोनेशन टू दी अदर इलेक्ट्रोफाइल विल बिकम डिफिकल्ट, देयरफॉर इट हैज लीस्ट बेसिक इन नेचर। सो याद रखना है एरोमेटिक में +R इंक्रीजेस एज बेसिक नेचर इंक्रीजेस, -R इंक्रीजेस बेसिक नेचर डिक्रीजेस, बट देयर विल बी ऑर्थो इफेक्ट सीन इन केस ऑफ +R ग्रुप या +I ग्रुप, कोई भी ग्रुप ले लो। ओके, देन उसके बाद में ये कंपैरिजन याद रखना। देन अमाइंस आर मोर बेसिक देन अल्केनामाइड। अल्केनामाइड आर एसिड अमाइड। अमाइंस में क्या होता है? अमाइंस के अंदर इन केस ऑफ अमाइंस RNH2 अल्केनामाइन, this is a +R group. It donates electron to the ring and this electron can be easily donated to electron deficient. But in case of amides, the lone pair of nitrogen present in NH2 group is delocalized because of -R effect of C डबल बॉन्ड। देखो वो इलेक्ट्रॉन पुल करता है, ये N जाता है C के बीच में, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब N पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, मतलब वो इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं डोनेट कर पाएगा, देखो उसका बेसिक नेचर कम है। देखो इस टाइप को हम लोग बोलते हैं एसिड बेस कंपाउंड। इसमें थोड़ा एसिडिक प्रॉपर्टी भी होती है, थोड़ा बेस भी होती है, बिकॉज वो यहाँ से फिर H+ रिलीज कर सकता है इलेक्ट्रॉन सिक्योर करने के लिए। रिमेंबर दैट। इसके लिए इसको एसिड अमाइड बोलते हैं, विच हैज लीस्ट बेसिक नेचर एज कम्पेयर टू अमाइंस। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द कार्बन इंक्रीजेस, बेसिक नेचर इंक्रीजेस। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर इसके साथ में बेसिक नेचर डिक्रीजेस, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस इफेक्ट को रिप्रेजेंट करती है? -I को। अब CH3NH2 मिथाइल अमाइन में कार्बन sp3 है, S सिर्फ 25% है। इसमें मैंने जो एग्जांपल लिया है, यर इट हैज CH3 N डबल बॉन्ड CH मतलब N इज अटैच टू डबल बॉन्ड कार्बन sp2। यर साइनाइड में N इज अटैच टू ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एटम sp। तो यर S कैरेक्टरिस्टिक इज मोर, electronegativity of the carbon is more, therefore this lone pair is not easily donated as compared to this. So as S character increases, the carbon attached to nitrogen, the donation of lone pair becomes difficult and basic nature decreases. So this is all about basic nature of amines.